Hello friends, how are you all? Right? I welcome you all in an important session of preparing logical reasoning section in the CLAT examination. तो CLAT exam के अंदर logical reasoning section typically उसका 24 questions are there in CLAT 2025. So how to prepare these 24 questions which come across in 4 passages that has been came in the last CLAT examination. तो उन 24 क्वेश्चंस को कैसे क्रैक किया जाए, इंश्योरिंग दैट कि हम 20-22 मिनट्स के अंदर कैसे इन क्वेश्चंस को लार्जर एक्यूरेसी के साथ क्रैक करें और पिछले 4-5 साल में क्लैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इन पर्टिकुलर कैसे इवॉल्व हुआ है। 2021 में क्लैट में कैसे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आता था, 2022 में कैसे आता था, 2023 में क्या चेंजेस आए, 4 में एंड 5 में। Because if we are doing last 5-year analysis of CLAT logical reasoning section, we will be able to understand what we can expect in CLAT 2026, 27, 28 in coming years, and how we need to rearrange our strategy, how we need to plan our preparations so that our preparations are just in line with what CLAT is expecting from us. CLAT जो हमसे expect कर रहा है CLAT कंसोर्शियम, हम उसकी लाइंस में उनकी expectations पे खरे उतरें। तो उसको करने के लिए लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन का इवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रॉम 2021 टू 2025। लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस फॉर यू। ओके, नाउ क्लैट 2025 लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर टिपिकली देयर वर 4 पैराग्राफ्स और पैसेजेस हैविंग 6 क्वेश्चंस ईच, सो दैट मेक्स इनटू 24 क्वेश्चंस व्हिच आर देयर। नाउ what was the first topic जिसके ऊपर क्वेश्चन was there was related to homelessness। तो homelessness के अंदर as a global issue how does homelessness is there, right? और वो सिर्फ यूएस के अंदर ही नहीं बाकी कंट्रीज के अंदर भी है, क्या कॉजेज होते हैं फॉर होमलेसनेस और किस तरीके से उनको इंप्रूव किया जा सकता है। दिस वाज द पैसेज दैट वाज देयर एंड 6 क्वेश्चंस वर देयर इन दैट। नाउ क्या ये 6 के 6 क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस वर राइट? नो, वन क्वेश्चन वाज टिपिकली विथड्रॉन बाय द क्लैट which was basically talking about कि आज रात को यूनाइटेड स्टेट्स में how many people were homeless in that case or lived without home, right? So the right answer was around 5,80,000 people which was mentioned in the passage, but in the options it was all in millions, right? So millions के कारण वो answers were not suitable in that case, तो वो question withdraw किया गया। Remaining 5 questions were pretty easy and direct that was there, right? Second was role of consultant in the organization। ये पूरे CLAT 2025 का सबसे easiest passage था according to me, putting all the sections put together। आप इंग्लिश को ले लीजिए, लीगल रीजनिंग को ले लीजिए, मैथ्स के सेक्शंस को ले लीजिए, दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट पैसेज दैट वाज देयर। एंड इसके अंदर रोल ऑफ कंसल्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंट का ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है, क्या फंक्शंस होते हैं, किन से इंटरैक्ट करता है, कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या कंसल्टेंट किसमें वाज देयर। एंड ऑल 6 क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट दैट वाज देयर, right? So if I have to recall one of the things, right, questions whether how does consultant what in what area, which area consultant will be working, right, to improve the efficiency of the company. So systems and process were one of the options, right? Changing the what you call lunch menu, organizing picnics, right? इस तरीके changing the uniform, या इस तरीके के options were there जिसको पढ़कर ही आप logically कह सकते हैं कि this is the right option। Remaining 3 options are unrelated in that case। So consultant वाला direct passage was there। Yes, lifestyle and mental illness that was there। तो ये 3 passages were critical reasoning के passages that was there। अब critical reasoning passages के अंदर क्या critical reasoning real level पे पूछी गई जो कि actually CLAT में या foreign education के अंदर पूछी जाती है? तो answer to this question is पूरे questions के अंदर अगर मैं passage की बात करूं 6, 6, 12, 6, 18, 18 questions के अंदर you will hardly find 3 to 4 questions was core critical reasoning questions। Remaining questions were easy, direct, and if you've understood the passage किसकी बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, what is the author or what is the idea author wants to communicate with the help of this passage, अगर आप वहां तक पहुंच गए तो I think remaining all the things were very easy in that case, right? तो अगर आपको central idea समझ में आ गया, you were able to crack it up। Yes, there was one analytical reasoning question was also there, passage of sitting arrangement। Few people were sitting in the circular arrangement and their respective positions were mentioned। अब इसके अंदर भी 3 questions were withdrawn by the CLAT। जो 4 questions withdraw थे उसमें से एक homelessness में से था and 3 was taken from sitting arrangement which was there। So in total CLAT 2025 24 questions were there, 4 questions were withdrawn, 20 questions
right? So I think the all 20 questions were easy to be cracked, can be cracked in around 15 to 20 minutes and doesn't require much efforts in that case. So that was CLAT 2025 का critical reasoning या logical reasoning का section that was there, right? Next one, CLAT 2024 लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन कैसे ऑर्गेनाइज था, कैसे बना था? तो इसमें भी वही लॉजिक था, 4 पैसेजेस वाज देयर, राइट? 3 क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेज थे, 1 एनालिटिकल रीजनिंग का पैसेज था, राइट? इस बार एनालिटिकल रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से नहीं आया जो क्लैट 25 में था। 1 साल पहले 2024 के क्लैट में इट वाज रूट कॉज एनालिसिस। तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग एंड व्हाट आर द रूट कॉजेस फॉर दैट, इसके ऊपर बेस्ड था। अ वेरी वेरी सिंपल वन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट वन। और बाकी जो 3 पैसेजेस थे जो क्रिटिकल रीजनिंग के थे, one was related to words, so words and their importance in language, how does words used to express the idea, the emotion, the description of the things around, this is what has been mentioned. All 6 questions were easy to do and could have been done easily. Second was related to AI, the artificial intelligence that was there. So artificial intelligence, which is a contemporary topic, जिसके बारे में हम सब ने सुना है, पढ़ा है, जानते हैं। तो artificial intelligence, उसके application, उनके functions, उसके usage was the passage highlighting. And third was yes, education system, right? तो education system के ऊपर another passage was largely based at. तो अगर आप typically देखेंगे तो was this say 24 questions difficult? So answer is not at all. 21 out of 24 questions was easy to be cracked. और ये 21 क्वेश्चंस आप टिपिकली 17-18 मिनट्स में आराम से कर सकते थे। एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी लेवल? आई फील अगर आप 21 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 21 क्वेश्चन में से अराउंड 20 क्वेश्चन तो आपके राइट होंगे विद मोर देन 90-95% एक्यूरेसी इन दैट केस। सो अ ब्रिलियंट सेक्शन व्हिच वाज देयर लास्ट 2 इयर्स, CLAT 2024 और CLAT 2025 के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लेट्स गो अ ईयर बिफोर दैट। So in CLAT 2023 section, logical reasoning section, वहां पे logical reasoning कैसे बना था? So in CLAT 2023 there was no analytical reasoning question. कोई भी एनालिटिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, न सेटिंग अरेंजमेंट का, न पजल फॉर्म में, न डेटा सफिशिएंसी में, किसी भी तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पूछी गई थी CLAT 2023 के अंदर। उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ 4 देयर वाज 5 पैसेजेस दैट वाज देयर। तो 5 पैसेजेस दिए गए थे एंड हर एक में 6 क्वेश्चंस वाज देयर। तो दिस वाज अ 30 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। All 6 passages, all 5 passages for that matter, was having which is from critical reasoning, not from analytical reasoning. और क्या इन 30 क्वेश्चंस के अंदर what was the kind of easy questions? तो 21 questions या 22 questions I feel was easy and direct and could have been done and should have been done in that case. And yes, 7 to 8 questions I feel was having a critical reasoning question जहां पे questions was easy but options were a bit confusing, where you will be confused among 2 options कि which one to choose, right? तो वहां पे error होने के या negative marks होने के chances थे, but otherwise 20, 21, even 22, 23 questions फोड़े जा सकते थे आराम से in CLAT 2023. Only thing is that जब 5 passages आते हैं और आपको पांचों को पढ़ना पड़ता है, these passages were of good amount of size. CLAT 2025 के कंसल्टेंट जैसा छोटा पैसेज नहीं था, जो इजी भी है, छोटा भी है और क्वेश्चन भी बहुत लूज बने थे। 23 के अंदर questions where quality was relatively good and passages also was a good quality of passage in terms of lengthy and having a considerable good amount of topic, right? If you see topic क्या था, तो depreciation of rupee and challenges before RBI, right? So if you are not a commerce student, right, तो understanding of economy in terms of rupee का depreciation, उसका impact क्या होता है, how does RBI try to handle this issue, right? Export import में क्या impact होता है, passage talking about that. Second was the easier one, right? Print media as a trusted source of information. Here the passage was highlighting that even though there are a lot of digital media which is now still being there, but print media is still the trusted one. अगले दिन जो न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपती है उस पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपेयर टू दिन भर जो ब्रेकिंग न्यूज सोशल मीडिया या बाकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर अवेलेबल होती है। न्यू एनर्जी कॉन्ड्रम which is taken from down to earth से लिया था। ये एनर्जी मिक्स के बारे में बताता है, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी है और किस तरीके से उनको अमालगमेट किया जाता है टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, राइट? अ सिंपल पैसेज डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जी, प्रिंट मीडिया, ये सब अपन ने सुना हुआ है, राइट? हाउ स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट मिडिल एज वुमेन्स कैरियर, राइट? This passage was again related to women and their career development and middle-aged women के इसमें stereotypes कैसे impact करता है उनके career को, what is the kind of pressures do they
have at that age in middle age, उस चीज को वो लोग highlight करते हैं, where they have to manage the family also and need to manage the responsibilities of the job also, right? And fifth was mankind, a hopeful journey, history in that case. तो अगर आप typically देखेंगे तो passage doable थे except the first one जो थोड़ा technical था, right? But it cannot be cracked in 15-18 minutes is what I can say, right? इसको करने के लिए definitely 25 minutes plus लग जाते हैं आपको. तो अगर आप सारे 30 के 30 क्वेश्चंस करते वो आपके आराम से 25 मिनट के आसपास आपका टाइम कंज्यूम कर लेते हैं in that case. तो here the smartness lies into identifying which topic or which passage I should pick in and try to solve it up. Even if you have the time, if you are a very good reader, avid reader in that case, आपका ability, critical reasoning abilities are good. Still, आप जब passage कर रहे हैं and there are 6 questions in each passage, if you are able to get 5 right out of it, good. अगर एक question आपको typically समझ में नहीं आता या confusing लगता है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं to avoid negative marking in that case. So that would have been a good strategy. According to me, 21-22 questions should have been attempted in around 18-20 minutes के आसपास. That would have been a smart way to handle this particular section, right? देखते हैं CLAT 2022 में passage how does this logical reasoning was structured. तो CLAT 2022 के अंदर there were around 6 passages. आप ध्यान रखिएगा 23 के अंदर 5 passages थे, 6 question each. यहाँ पे 6 passage थे, 5 question each. Again 30 question का section आया था logical reasoning, लेकिन 5 की जगह 6 passage थे. There is no brainer in understanding this. जैसे नंबर ऑफ पैसेजेस बढ़ जाएंगे आपका टाइम कंजम्पशन बढ़ जाएगा, आपका टाइम विल इंक्रीज टू क्रैक ऑल दिस क्वेश्चंस. तो दैट इज वेयर क्लैट 2022 वाज बेस्ड एट कि इट वाज टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन प्राइमरली. डिफिकल्ट नहीं था, राइट? अगर थोड़ा डिफिकल्टी देखा जाएगा तो क्लैट 2025 से जरूर डिफिकल्ट था. 21, 22, 23 थोड़ा डिफिकल्ट थे, लेकिन फिर भी मैनेजेबल थे. अगर आप ऑलमोस्ट 30 में से 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन लगभग क्रैक कर लेते हैं तो उसे डिफिकल्ट सेक्शन नहीं माना जा सकता, राइट? अराउंड 20 मिनट्स, 1 मिनट पर क्वेश्चन अगर क्रैक हो रहा है तो दैट इज अ गुड इनफ थिंग दैट हैज टू बी डन. क्या टॉपिक थे क्लैट 2022 के? लेट्स सी. कॉलेज एजुकेशन सिस्टम. तो देखिए एजुकेशन वाला 25 में भी आया, एजुकेशन वाला 23 में भी था, एजुकेशन वाला 22 में भी है, राइट? 25 के अंदर इंग्लिश के सेक्शन के अंदर एजुकेशन सिस्टम वाज देयर, राइट? तो एजुकेशन के ऊपर क्लैट के पैसेजेस आर देयर दैट जनरली कम्स. तो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम वाज वेरी इजी. क्लैट 2022 के टाइम पे कोविड-19 और ऑनलाइन एजुकेशन, again impact of covid on universities and their curriculum and their teaching methodology, very simple and direct. Both these passages were definitely doable. और इनके 10 क्वेश्चन, 5 + 5 10 क्वेश्चन में से एक आधी हार्डली ऐसा क्वेश्चन था जो डिफिकल्ट कहलाया जाएगा. 9 were definitely easy and manageable and should have been prepared very well, right? Next, biodiversity targets, that was there. Next was POSCO Act, that was there. उनके 5 questions. लाफ्टर एंड जुडिशियल व्यू, ये टॉपिक तो इजी लगता है लेकिन जिस तरीके से लैंग्वेज ऑफ द पैसेज वाज देयर ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगा था उस साल, राइट? तो जुडिशियल व्यू के अंदर लाफ्टर का एंगल दैट वाज हाइलाइटेड एंड द न्यूक्लियर पावर वाज वेरी इजी वन. तो अगर आप देखेंगे पैसेज नंबर 1 and 2, पैसेज नंबर लास्ट वन वेरी वेरी इजी. पैसेज नंबर व्हाट यू कॉल 3 and 4 वाज मैनेजेबल एंड पैसेज नंबर 5 टॉपिक इजी था, स्ट्रक्चरिंग और क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे टू बी डन इन दैट केस. So this is how once you pick up a what you call section, आपको दिखता है कितने पैसेजेस आए, कैसे क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड हुए हैं, एक बार आपको ये आइडिया लग जाता है पहले 2-3 मिनट में. देन यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड मैं कौन सा पैसेज पहले करूं, कौन सा पैसेज आखिरी में करूं. उसको सीक्वेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको अपने अटेम्प्ट्स भी बढ़ाने हैं, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है और एक 20 मिनट के आसपास का टाइम उस पर स्पेंड करके मैक्सिमम नेट मार्क्स लेकर आना है. तो यूनिट 2 फर्स्ट 2-3 मिनट के स्कैन के बाद यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस कॉल कि ये वाला और ये वाला पैसेज मैं कर लूंगा फर्स्ट, राइट? ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, क्लैट 2021 कैसे स्ट्रक्चर्ड था? तो क्लैट 2021 का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड, अगेन देयर वर 6 पैसेजेस ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच एंड व्हाट वाज द टॉपिक, राइट? तो कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ वाज वेरी इजी. टिपिकली अगर आप देखेंगे तो नीचे भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट कोविड-19 हैंडलिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, एक्टिविटीज जो कोविड-19 के दौरान हुई थी वाज बीन हाइलाइटेड. तो 2 पैसेज कोविड-19 के उस साल थे बिकॉज कंटेम्पररी इशू था उस समय कोविड-19. डिप्लोमेसी इन नेबर्स इजी, स्कूल एजुकेशन इजी, क्लाइमेट चेंज वाज इजी, अनएम्प्लॉयमेंट वाज इजी. तो इफ आई हैव टू सी क्लैट 2021 और 22 में तो 21 वाज रिलेटिवली मोर इजी एंड डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेजेस. एंड यस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने इसीलिए यहाँ पे बढ़ा के रखे कि 24-25 क्वेश्चंस वर इजीली टू बी क्रैक इन 21-22 मिनट्स. ये क्वेश्चंस क्रैक
किए जा सकते थे, राइट? So if I have to sum up, right, understanding the CLAT का logical reasoning वाला section to all of you over here, right, my friends, CLAT 2024 and 25 को अगर मैं पहले बात करूं तो CLAT 2024-25 are relatively an easy level of passages जिसमें 90 से 95% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते थे with a fair level of accuracy, राइट? 1 मिनट पर क्वेश्चन का टाइम लगता है, आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, और 3 क्रिटिकल रीजनिंग और 1 एनालिटिकल रीजनिंग के हिसाब से पैसेज था CLAT 2024-25 में। यस, CLAT 2021-22-23 में 30 क्वेश्चंस वर देयर, जिसमें CLAT 2023 में 5 पैसेजेस, 21 एंड 22 में 6 पैसेजेस। लेवल आई स्टिल फील इजी, अराउंड 80% ऑफ क्वेश्चंस किए जा सकते थे, बट इट वाज लेंथी, इट वाज टाइम कंज्यूमिंग। पैसेज, एक एक पैसेज कौन सा बढ़ जाता आपका अगर आपकी रीडिंग स्किल बेटर होती। द मोमेंट जिस बच्चे की रीडिंग स्किल बेटर है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बेटर है, एनालिटिकल एबिलिटी बेटर है, राइट, that candidate would have attempted one extra passage compared to other people, और one extra passage आपको नेट 3-4 राइट क्वेश्चंस प्रेजेंट कर देता, right? So that would have been the CLAT 2024-25 and 21-23 के बीच में comparative analysis which is there, right? Now the bigger question for in front of us is CLAT 2026 जो कि 7th of December को होने वाला है। इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर हम लोग? आई फील CLAT 2026 किसी भी पैटर्न में स्विंग हो, अगर वो 24-25 के पैटर्न में स्विंग हो रहा है कि जिसमें 4 पैसेजेस आएंगे, 1 एनालिटिकल वाला, 3 क्रिटिकल रीजनिंग वाले, यस दैट इज इजी, आराम से 20 मिनट में आप 22 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो उसमें, एंड दैट वुड हैव बीन डन वेरी वेरी वेल, आराम से क्रैक किए जा सकते हैं। अगर CLAT 2026 पुराने पैटर्न पे जाता है कि नंबर ऑफ पैसेजेस 4 से बढ़ा के 5 या 6 कर देता है और उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के पैसेज क्वेश्चन डाले, या वो सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग के ही सारे पैसेजेस हो टिपिकली, तो अगर पुराने पैटर्न में भी जाता है तो जैसे मैंने बताया था, यू स्कैन द पेपर इन फर्स्ट 2-3 मिनट, सेक्शन स्कैन करो पहले 1-2 मिनट में और समझ लो कौन से इजी पैसेजेस है। जैसे ही आप 2-4 लाइन ऊपर की आप देखते हैं, आपकी नजरों से गुजरती है, यू आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक किस एरिया पे बात चल रही है एंड द लैंग्वेज, एंड यू कैन पिक इट अप अकॉर्डिंगली। इफ आई हैव टू से डिफिकल्टी लेवल ऑफ ओवरऑल 5 इयर्स इन दैट केस, तो 5 इयर्स में आई वुड से क्रिटिकल रीजनिंग के कोर क्वेश्चंस was around 25 to 30 to 40% maximum. 60% paper was largely direct, which is there. So if you are able to understand the central idea of the passage, if you are able to understand what is that author wants to communicate, if you are able to understand how he or she has structured the passage per se, आप 10 में से 6 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप उसको एक्यूरेटली कर लेंगे। ओनली इन द एरिया ऑफ 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 जो थोड़े से इंफरेंस बेस्ड थे, जो कि क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को टच करते हैं कि ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, which of the following if true would weaken the argument of the author, which of the following if true would strengthen the argument of the author। तो आपको argument, assumption, conclusion, central idea इसको समझना था। वो 10 में से 4 क्वेश्चन ही थे, जो भी अगर आपने पैसेज का आइडिया सही पकड़ रखा है तो you will be able to crack it up pretty well, not at all difficult in that case। And with our practice and our systems over here, I'm pretty sure आपको जो प्रैक्टिस दी जाती है over a period of 6 months, 8 months, 1 year, you will be able to understand by reading some 450-500 words of any passage, right, in the passage form, you will be able to pick it up and understand author का central idea क्या है, line of thought क्या है, और वो किस intensity से present किया गया है, at a higher intensity, what you call neutral level or a lower intensity, and accordingly you will be able to crack it up। Simple funda to crack, get a marks। अगर आपसे कोई पूछेगा 20 मिनट में 20 से 21, 22 मार्क्स कैसे लेकर आए CLAT के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, आई विल गिव यू a मंत्र फॉर इट। 1, रीड द पैसेज, अंडरस्टैंड its core idea, किसकी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, सेंट्रल आइडिया क्या है, read the question comfortably, and third and most important thing, read the options very very well। ऑप्शंस को आराम से पढ़िए, 10-20 सेकंड ज्यादा टाइम दीजिए चारों ऑप्शंस को पढ़ने में, एंड देन टेक अ जजमेंट। Many a times I have seen across so many years of experience, student in critical reasoning section, especially logical reasoning, critical reasoning section के अंदर student जहां पर 2 options confusing होते हैं, जहां पे 2 options थोड़े closely बनाए गए होते हैं, create किए गए होते हैं, वहां पर student अगर उन दोनों options को डिटेल में नहीं पढ़ेगा, completely नहीं पढ़ेगा और फिर उसका meaning interpret नहीं करेगा, तो उसका decision कई बार गलत हो जाता है।
So to improve your accuracy and to crack the difficult question critical reasoning, give 10, 15, 20 seconds more to the option to understand the real meaning of the option and then take your decision which is the right answer. ऐसा अगर आप करेंगे तो I'm pretty sure you will be able to crack it up. Along with that, there are a lot of strategies, short tricks that are available to crack the critical reasoning section, which I'll be discussing in the later videos with you. So critical reasoning section के options होते हैं, assumptions को कैसे option में से निकाला जाए, conclusions कैसे आइडेंटिफाई किए जाए, कैसे क्लैट टिपिकली आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, कैसे वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शंस बनाता है और उसको चेंज कर देता है टुवर्ड्स द एंड, इज व्हाट विल बी पिकिंग इट अप, राइट. तो ये सब चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट आई एम श्योर आपको आज के सेशन में वीडियो के अंदर 5 साल का क्लैट का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन कैसे इवॉल्व हुआ 2021 से 2025 तक, ये समझ में आया होगा. ये भी समझ में आया होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू स्कोर 20-22 क्वेश्चंस टिपिकली इन अराउंड 18 to 20 मिनट्स, राइट. और किन 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी, दैट इज पैसेज, क्वेश्चन एंड ऑप्शंस. ऑप्शंस आर इंपॉर्टेंट, right. ये 2-3 messages is what I want to pass it on to you, right, in today's video. Thank you very much for giving your time to watch this video. Do share your love with us and I'll appreciate it, right, and we'll give you all the very best for the upcoming exam of CLAT 2025. May God bless your hard work and you achieve exceptionally good score in CLAT 2025 and get into your favorite NLU, right. All the very best. Take good care of yourself. Bye bye.